1936 वो दिन हमको पता चला कि अपना देश गुलाम हो तो कैसा लगता है। दिन का अपना हॉकी टीम के साथ गया। उस टाइम उसको ब्रिटिश इंडिया का टीम बोलता था। एडोल्फ हिटलर जर्मनी का डिक्टेटर बन चुका। कुछ दिन पहले हिटलर ने अपना एक भाषण में इंडिया का बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला। तो इधर जर्मनी में जो इंडियन लोग था वो पूरा जोश कर गया, जुलूस निकाल दिया, पूरा ओलंपिक्स बॉयकॉट कर दिया और ये अंग्रेज लोग एकदम नर्वस हो गया। रिजल्ट साथ में बात तो वैसा चलता था जैसे कोई टीम नहीं, दोनों डायमंड हो। माई सेल्फ जूनियर का बोले तो सूट पहने मगर तो ऐसे ही फालतू था। असली जान वो खिलाड़ी लोग था। वो गोल्ड मेडल ले चुका था और तीसरा लेने आया था। और खिलाड़ी मारुति, साबिक अब्दुल्ला, अमन सिंह, जेम्स कलन, हरविंदर सिंह के मारुतियों का मारुति अपना कैप्टन सम्राट। To the 1936 Field Hockey Finals. This morning will decide who takes the Olympic gold home. It is a full house here today, and the stadium's full to the brim with excited spectators. Even the Führer is here to watch the match. In protest of Adolf Hitler's speech against the Indian independence movement, the Indian contingent have refused to salute him. On one side, we have the defending champions of the last two Olympic Games, British India, and on the other side, we have the host nation, Germany, who have not lost a single match during this entire tournament. दोनों टीम्स फील्ड की तरफ आ रही हैं और बहुत ही कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। Ball on the center spot. Bully off. Germany wins the ball. A through pass by the German captain Rudolph. The ball is in the German half. Brilliant interception by Sadik. The pass is to Ashley. Ashley finds Imtiaz. Imtiaz is approaching the German D area from the center and plays in Harvender. Harvender shoots, but it is a fantastic save by the German goalkeeper. Indian players again have the possession of the ball. Quick passing between them. Samrat has the possession. Fantastic dribbling attempt and goal! And with this goal from Samrat, British India's most lethal player, they lead 1-0 in the match. Again, possession is with the British Indian team. Imtiaz moves forward. Oh, very rough tackle by Otto Hanke on Samrat. The possession is now with the German team. Beautifully dodged by Captain Rudolph. He has a strike at the target, and it's a goal! Germany have their equaliser. The score stands, Germany 1, British India 1. स्कोर 1-1 की बराबरी पर। Gottfried dodges Harvender. His through pass finds his captain Rudolph. Another very rough tackle on Imtiaz by Kruger. Still no card shown by the umpire. Becker approaches the goal mouth, but Akif Ansari's quick reflexes save a goal for the British Indian team. Germany steal the ball, and there's the halftime whistle. मैं क्या सम्राट भाई, आपने देखा कैसे छोटे-छोटे पास दे रहे हैं जर्मन? मतलब खेल तो इन्होंने हमारा सारा स्टडी किया है। उनकी हमें खुली चुनौती है कि तुम गोल मारोगे, हम तुमको मारेंगे। Is bloody Nazis playing such a dirty game? हम एक बात बोलेगा। अंपायर अंधे हैं, उन्हें अपील करके कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है उनको भी धमकाया गया है। सम्राट भाई, हमें अपनी स्ट्रेटजी बदलनी होगी। हम एक बात बोले प्लीज। बोल भाई बंगाली। अभी तक हम लोग ब्रिटिश के अलग खेलता था, अभी हम इसके लिए खेलें। What are you doing, Bago? You know this flag is banned. ब्रिटिश ऑफिसर्स को पता चल गया तो सबके सब गद्दारी के इल्जाम में जेल में होंगे। आप कौन सा आजाद घूम रहे हैं?
सम्राट भाई Welcome to the second half. So far, the first half has produced 2 goals, and the score remains tied at 1 goal apiece between Germany and British India. प्लेयर्स पोजीशन लेते हुए Possession is with the British Indian team. Yunus passes to Sadiq. Sadik's through ball to Samrat. Samrat shatters the German defensive line. He shoots, and it's a goal! There seems to be some kind of scuffle between Otto Hanke and Samrat. Samrat is on the ground. The umpire warns Otto Hanke and awards a penalty corner in favour of British India. If Samrat doesn't return to the field because of this injury, this could give Germany the opportunity to stake a claim on this match. सम्राट को काफी गहरी चोट आई है जाओ दिखा दो नहीं सम्राट Samrat walks back into the game. सम्राट फील्ड पर वापस आते हुए Even the German crowd applauds Samrat for his love and commitment to the game. Sadiq pushes the ball to Harvinder. Fine show of skill by Harvinder, and he passes the ball to Samrat. Samrat shoots, and it's a goal! और इंडिया का चौथा गोल And with this hit, British India has scored their 5th goal. Harvinder scoops, Simpson's diving attempt, and it's a goal! And the score is 6-1. Samrat dodges German player, fires in, and it's yet another goal! British India 7, Germany 1. British India have completely destroyed any hope this German team had for Olympic gold on their home ground in these finals. India scores its 8th goal. There's absolutely no comeback for Germany from here. British India defeat Germany convincingly by 8 goals to 1 and secure their 3rd consecutive Olympic gold. गोल ब्रिटिश इंडियन Ladies and gentlemen, please stand up for the British Indian anthem. एक तरह से ये सम्राट का सबसे बड़ा जीत था, बिगेस्ट विक्ट्री। और एक तरह से ये विक्ट्री नहीं था, क्योंकि हमारा सर पर ब्रिटिश फ्लैग फड़फड़ा के हम सबको मानो ये बोल रहा था, यू आर नॉट फ्री। उस दिन सम्राट और हम एक शपथ लिया कि एक दिन हम फ्री कंट्री होकर ओलंपिक में आएगा, गोल्ड जीतेगा और फिर अपना तिरंगा को सल्यूट करेगा। उस टाइम हम नहीं जानता था कि हम जो सपना देखता है वो सपना तो देश का लाखों करोड़ों लोग देख रहा है, पूरा यंग जनरेशन देख रहा है।
जाए मन सपने सजाए हम चले हैं तो चलते ही जाए तो समय की है कहानी पल पल अनजानी क्या होना है कैसे बताएं सुन कहती है ये डगर डगर बात नजर नजर है जो सपने तारों से जम गए डगर डगर चले नगर नगर संग अपने। सितंबर 2, 1939 जर्मनी ने पोलैंड पर हमला करके युद्ध की शुरुआत कर दी। 15 सितंबर 1939 भारत के हुक्मरानों ने अंग्रेजों का डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव खारिज कर दिया। उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो पूर्ण आजादी चाहते हैं। रास्ता रास्ता दीवारें हैं कदम कदम पर मोड़ चलता चल सपनों के राही। 20 मार्च 1940 विश्व युद्ध की वजह से हेलसिंकी ओलंपिक्स रद्द कर दिए गए। चलता चल सपनों के राही तू हिम्मत ना छोड़। चेहरे हैं आंखों में है अरमान रुक नहीं सकते कहीं आए है ये तूफान ये मुसाफिर एक दिन मंजिल पे मिलने हैं बिजलियां कितनी गिरे ये फूल खिलने हैं ये फूल खिलने हैं दिन आए दिन जाए मन सपने सजाए हम चले हैं तो चलते ही जाए जो समय की है कहानी पल पल अनजानी क्या होना है ये कैसे बताएं सुन कहती है ये डगर डगर बात नजर नजर है जो सपने तारों से जम के डगर डगर चले नगर नगर संग अपने। रास्ता रास्ता दीवारें हैं कदम कदम पर मोड़ चलता चल सपनों के राही तू हिम्मत ना छोड़। रास्ता रास्ता दीवारें हैं कदम कदम पर मोड़ चलता चल सपनों के राही तू हिम्मत ना छोड़। मेरे पैसे किधर है? अरे किरीट भाई, हेजल भाई, केविन आचा, हेलो, क्या हुआ? कौन है? मुझे ये बताओ, ये तो गोरा पहलवान है जिवेस्को, उसका क्या भाव रखा है? किरीट भाई, जिवेस्को को भूल जाओ, बंगाली पे लाओ। देखो ये बंगाली है ना तुम्हारा पहलवान वो लोकल है, ये जिवेस्को एकदम इंटरनेशनल है, हम तो हमारा पूरा पैसा उस पे ही लगाएगा। अरे दादा ऐसा मत करना, समझे? जिवेस्को का चांस है 0। क्यों? बोम्बिल फीस। अरे तुम थूकना बंद करो दादा। कल रात को फ्राइड फिश खाया, बोम्बिल, पेट में दोंगल चलता है, सोचो अभी 1 का 10 भाव है, समझे? समझो। जितना बोलता है लगा देते हैं। एक काम करो, ये लो, ये तुम्हारा बंगाली पे ये दादा, ये बोम्बिल का स्टोरी हर बार ये सेठ लोग का जेब से पैसा ऐसा खींचता है जैसे चुंबक लोहा खींचता है, एकदम सुरख करके। बंगाली, तुम अपना बोम्बिल का भंका स्टोरी घर से लोगों को सुना कर आएगा। अरे दादा, ये स्टोरी भंकस है, ये तुम जानता है, हम जानता है, वो लोग नहीं जानता है जो 2 रुपए पैसा लगा है, जिसका जीतने का चांस बिल्कुल 0 है। ये क्या खा के आया? ये खा के नहीं, तुम साला पी के आया है। बोला तो तुमको कि आज दत्तों का जीतना फिक्स किया है, गड़बड़ मत करना। उसी पर पैसा लगवा दिया तुम, बर्बाद कर देगा हमको। मुन्ना, छोटू, लेकर जाओ इसको, अच्छे से मरम्मत करो, साले सारे पोस्टर डाल के। दोबारा दिखना मत मेरे को इधर।